Dear students, welcome to the 8th video in this series. In this video, we are going to learn about food adulteration, which is the last topic of the first chapter, Food and Human Health. Now, this particular topic is very relevant because food adulteration is a growing concern. It is a major and serious concern. The gravity of the situation, the seriousness of this situation, you can understand by these news reports. About 40% of the food items are adulterated. 40% of the food items are adulterated. 46% of the edible oil, खाने का तेल जो हम लोग यूज़ करते हैं, these oil are adulterated, मिलावटी oil है. And the sweets which we are consuming, most of the sweets are made from adulterated substances. मावा जो हम लोग यूज़ करते हैं, खोया, 68%, almost 70% of the milk which we are consuming is adulterated. Synthetic milk भी हो सकता है. The vegetables and the fruits which we are using are all basically adulterated. They are basically being grown and they are being basically ripened with the use of chemicals which are toxic. Now that is why this food adulteration topic is very relevant to each and every one of us, not only for our course content but also for our general understanding and for the understanding why food adulteration is a major concern nowadays. Right, so let us understand more in detail about food adulteration. Now, how do we understand about food adulteration? So we have to understand about food adulteration by first defining what is food adulteration. So how do we define food adulteration? Food adulteration basically refers to a process by which the quality of a given food substance, that is edible substance, is either reduced through the addition of adulterant or by removing of vital components. So there are two major aspects. फूड कैन बी एडल्ट्रेटेड आइदर बाय एडिशन ऑफ एडल्ट्रेंट, उसमें कुछ मिला के, या उसमें से कोई एक वाइटल कंपोनेंट को रिमूव करके. ये दोनों ही केसेस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि फूड को एडल्ट्रेट किया हुआ है. एडल्ट्रेशन मीन्स सिंपल, अगर हम भाषा में बात करें तो एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट. एडल्ट्रेशन मीन्स मिलावट, लेकिन मिलावट का अर्थ क्या होता है? उसमें कुछ मिलाना. लेकिन अगर हम इसकी ब्रॉड डेफिनेशन की हम बात करें, जो साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें, तो उसमें कुछ मिलाने को, बाहर से कुछ उसमें मिला रहे हैं हम, तो वो भी मिलावट है. लेकिन अगर उस फूड सब्सटेंस का जो नेचुरल कंपोजिशन में से हम कुछ एक वाइटल सब्सटेंस कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल रहे हैं जिससे उसकी क्वालिटी, कंपोजिशन, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू में फ़र्क आता है, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं? एडल्ट्रेशन. उसको भी हम एडल्ट्रेशन ही कहते हैं. नाउ दीज आर दी 3 डेफिनेशंस, जो आपको अच्छी लगे, ये सारी डेफिनेशंस हैं. ओके, सो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड देम बाय दीज डेफिनेशन. डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. नाउ व्हाट इज़, we have just learned about the first definition, this is the second. The process of lowering of nutritive value, उस फूड स्टफ की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको लोअर कर दिया जाता है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है. वंस अगेन हाउ? आइदर बाय रिमूविंग ए वाइटल कंपोनेंट, उसमें से कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट या कंपोनेंट को निकाल दिया जाता है, और बाई एडिंग ए सब्सटेंस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, या उसमें कोई फॉरेन सब्सटेंस, बाहर से कोई ऐसी चीज़ मिला दी जाती है जिससे उसकी नेचुरल जो उसकी कंपोजिशन है वो अल्टर हो जाती है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है. राइट, सो दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ adulteration. Now what is the third definition? Third definition, they all are the same, just there are different words how we can define adulteration. Now this definition says adulteration of food is commonly defined as either the addition, कुछ डालना, मिलाना उसमें, और subtraction, that means उसमें से कुछ निकालना, of any substance to the food or from the food, कुछ उसमें डालना या उसमें से कुछ निकालना, सो दैट द नेचुरल कंपोजिशन, उसकी जो नेचुरल कंपोजिशन होती है, एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड सब्सटेंस गेट अफेक्टेड. उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसकी जो खुशबू है, उसका जो स्वाद है, जो भी उसकी जो एक पर्टिकुलर जो उसकी नेचुरल क्वालिटी है उसमें कुछ अफेक्ट आता है. वो नेचुरल क्वालिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, लोअरिंग ऑफ द क्वालिटी of the edible substance either by addition or by removal of a particular substance. So from that food substance is known as adulteration. ठीक है, I think these are very comprehensive definitions and
यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फूड एडल्ट्रेशन. आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ फूड एडल्ट्रेशन. नाउ वाई दिस सिचुएशन इज सो ग्रिम. इतनी सीरियस सिचुएशन क्यों है, क्यों हम इसको इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं. वाई वी आर सो मच कंसर्न्ड अबाउट फूड एडल्ट्रेशन. बिकॉज एज पर दी एस्टिमेट्स, अंदाजे के हिसाब से 30 to 40% ऑफ एडिबल सब्सटेंस इन द मार्केट आर एडल्ट्रेटेड. 30 से 40% जो भी खाने की चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं उनमें मिलावट है. दे आर ऑल एडल्ट्रेटेड, मिलावटी है. एडल्ट्रेटेड घी, देसी घी जो हमारे संस्कृति में हम लोग बहुत खाते हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, देश के काफ़ी भागों में इसका काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन है. दैट इज़ एडल्ट्रेटेड. वो काफ़ी मतलब उसका प्योर मिलना आप क्या कह सकते हैं, दुर्लभ हो गया है ना. इट इज़ अ रेयर कमोडिटी नाउ. मिल्क. Now India is the biggest milk producer, but still the demand is so high that most of us are consuming adulterated milk. Oil, edible oil. Once again, edible oil we are consuming. We can say we are one of the most largest. We are the largest consumer of edible oil. Then we have spices, masale, sweets. All these basically which are sold in open market, most of them are adulterated nowadays. According to the news report, food adulteration in India is it may be the highest in the world. We are the world leaders in food adulteration. हमारे को अच्छी चीज़ के अंदर वर्ल्ड लीडर बनते तो हम उसमें गर्व महसूस करते. वी वुड हैव बीन प्राउड, बट नाउ वी आर बेसिकली द वर्ल्ड लीडर इन फूड एडल्ट्रेशन. मिलावट के अंदर हम वर्ल्ड लीडर है. सो विच इज़ बेसिकली अ कंसर्न. एक हमारे लिए शर्म की बात है, चिंता की बात है. Now adulteration in cold drinks. Cold drinks basically which is a craze in the younger generation, in the youth, and you would have seen commercials. उसके बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स को लेके वो ऐड करते हैं. स्टार्स को लेके ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे को फ़ायदा पहुंचाती है. इसीलिए उसको कैसे बेचा जाए, उसकी मेरिट्स क्या दी जाए, उसकी कोई मेरिट है ही नहीं. उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको उस ऐड के अंदर हाईलाइट किया जा सकता है. तो क्या करते हैं वो ऐड, इमोशनल अपील करते हैं, स्टार अपील करते हैं. वो स्टार्स को जो फॉलो करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान या कोई क्रिकेटर को ले लेते हैं, और फिर वो जब क्रिकेटर उसको एंडोर्स करता है उस ब्रांड को, तो उसके जो भी फॉलोवर है, उसके जो भी फैंस है, वो भी उन ब्रांड्स को यूज़ करने लग जाते हैं. लेकिन ये इतना सारा ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे लिए फ़ायदा करती है. राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट the adulteration in cold drinks. In India, government has not implemented any laws regarding the standardization of the quantity of substituents used in making cold drinks. Now, during the process of making cold drinks, there are many substituents, there are many additives which are added to it. Cold drink बनाने के प्रोसेस के दौरान बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड की जाती है, बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अंदर ऐड किए जाते हैं. नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, उसकी क्या अपर लिमिट होनी चाहिए, उसकी क्या लोअर लिमिट होनी चाहिए. बिकॉज देयर आर मैनी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एडिटिव्स इन दी कोल्ड ड्रिंक्स विच आर टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ. बहुत सारी चीज़ें उनमें ऐसी ऐड की जाती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो हमारे को नुकसान पहुंचाती है. अब उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन कम रखा जाए, बहुत कम रखा जाए, एक पर्टिकुलर लिमिट में रखा जाए, तो वो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी. लेकिन अगर उस लिमिट से उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो वो हमारे लिए टॉक्सिक रहती है. नाउ इन फॉरेन कंट्रीज़, यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूएसए के अंदर, वहाँ पे स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने रेगुलेट किया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट या तो ऐड ही नहीं करने, या अगर इनका एडिशन हो तो इस क्वांटिटी से कम होना चाहिए. उनकी लिमिट उन्होंने फिक्स की हुई है. लेकिन इंडिया के अंदर ये लिमिट फिक्स नहीं है. इसीलिए जो भी कंपनीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है वो अपने मन मुताबिक उनकी क्वांटिटी को कई बार बढ़ा देती है, और जिससे हमारे को टॉक्सिक इफेक्ट पड़ते रहता है. राइट. सो लेट अस लर्न व्हाट आर दी टॉक्सिक केमिकल्स विच आर यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स. नाउ टॉक्सिक केमिकल्स लाइक लिंडेन, मैलाथियन and chlorpyrifos. Now these are basically the names of pesticides and insecticides which are used in agriculture for killing insects and pests.
Linden is there, malathion is there, and chlorpyrifos are insecticides. Basically they are toxic, non biodegradable substances. Now they are found in कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये मिले हैं और इनकी क्वांटिटी इतनी मिली है जो हमारे लिए टॉक्सिक है. आर मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर बिकॉज दे अफेक्ट नर्वस, the reproductive system, and even they compromise the immunity. They disturb our immune system, they reduce our immunity. So you can think now these toxic chemicals are found in cold drinks and these are highly toxic for humans, and that is why we say that consumption of cold drink is dangerous. Okay, and they are not the alone ones. There is a comprehensive list. Phosphoric acid is used in cold drinks which damages teeth enamel. phosphoric acid यूज़ की जाती है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो जो हमारे दांतों का एनिमल है विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट उसको डिज़ोल्व कर लेती है, इसलिए दांत क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. अ केमिकल विच इज़ नोन एज इथाइलिन ग्लाइकॉल is mixed in cold drinks which does not allow the cold drink to freeze even at 0 degree is known as sweet poison. Now what is ethylene glycol? Ethylene glycol is an organic compound which is also known as antifreeze. इसको यूरोपियन कंट्री में या उन कंट्रीज़ में जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है तो इसको एंटी फ्रीज़ के रूप में यूज़ करते हैं. इसको पेट्रोल में डालते हैं, डीजल में डालते हैं, जो कार्स का रेडिएटर होता है उसके पानी के अंदर डालते हैं. क्यों डालते हैं? ताकि वो पानी, पेट्रोल, डीजल जमे नहीं, लो टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड फॉर्म में रहे, इसलिए इस केमिकल को वहाँ पे यूज़ करते हैं. लेकिन अभी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज़ हो रहा है. वाई? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स को जब भी सर्व करते हैं तो आपने देखा होगा चिल्ड सर्व करते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे सर्व करते हैं और इसी पे वो अच्छा लगता है. गर्म आप पियोगे तो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा ना. जब वो चिल्ड सर्व करते हैं तो बहुत बार उनका टेम्परेचर फ्रीज़र के अंदर 0 डिग्री या उससे कम हो जाता है. अगर उससे कम होगा और वो जम गए तो क्या होगा, जमने से उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और जिससे वो बॉटल्स क्रैक हो जाएंगे. अब इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल को ऐड करने से उनका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो 0 से भी कम पहुंच जाता है. इसीलिए अगर उनको ठंडा भी किया जाए, उनका टेम्परेचर 0 तक भी पहुंच जाए तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट, वो फ्रीज नहीं होती. सो इट इज़ बेसिकली एडेड टू cold drinks so that they do not freeze even at 0 degree. Now this ethylene glycol particular chemical has many side effects. It is known as sweet poison. Sweet poison मतलब धीमा जहर, मीठा जहर, जिसकी वजह से जो लोग रेगुलर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उनकी इम्यूनिटी पे, उनके वाइटल ऑर्गन्स पे ये असर डालते रहता है एंड अल्टीमेटली इट टेक्स इट्स टोल. वो अपनी हार्मफुल इफेक्ट के कारण अल्टीमेटली कोई ना कोई ऑर्गन परमानेंटली डिसेबल हो सकता है. एंड इट इज़ नॉट ऑल, अभी ये ख़त्म नहीं हुई है लिस्ट, ये बहुत लंबी लिस्ट है. राइट नाउ बोरिक, ऑर्थोबोरिक एंड बेंजोइक एसिड, दीज आर ऑल्सो एडेड इन कोल्ड ड्रिंक्स टू मेक इट एसिडिक. उसको खट्टा बनाने के लिए, मीठा तो बहुत सारी उसमें शक्कर, शुगर ऐड की जाती है टू मेक द कोल्ड ड्रिंक्स मोर एसिडिक विच कॉजेज हाइपर एसिडिटी. बहुत बार लोग एसिडिटी में लेते हैं लेकिन इससे खुद हाइपर एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन कॉज कर सकती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एंड इट डैमेजेस बोन्स. पहले भी हमने बात की फॉस्फोरिक एसिड. सो ऑल दीज एसिड्स प्लस द फॉस्फोरिक एसिड दे डैमेजेस बोन, हमारी हड्डियों को गलाते हैं, हमारी हड्डियों को और कमज़ोर करते हैं. नाउ लेड इज़ ऑल्सो एडेड. लेड इज़ अ हैवी metal, it is very toxic. 0.4 ppm parts per million of lead is used in cold drinks. It is toxic to brain. हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन को डैमेज करता है. it damages our liver and muscles. Now caffeine is mixed in cold drinks. It causes insomnia and headache. अभी तक जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट हमने देखी किसी का भी कोई पॉजिटिव असर नहीं है. ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट किसके लिए ऐड करे जाते हैं? ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट या तो उनके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए या उनकी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए डाले गए हैं. राइट नाउ कैफीन इज़ ऑल्सो एडेड. कैफीन किससे आया है? इट इज़ एन एल्कलॉइड विच इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन कॉफ़ी. और ये क्या करता है, जब हम कॉफ़ी पीते हैं तो क्या होता है, हमारे को एक फ्रेशनेस फील होती है, एक स्टिमुलेंट है ये. राइट नींद नहीं आती है. तो अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको और अच्छा लगे स्वाद के अलावा. तो कोल्ड ड्रिंक में एक
किक के लिए, एक स्टिमुलेशन के लिए उन्होंने क्या डाल दिया, कैफीन डाल दिया, जिससे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में आपको, जैसे हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद में हमारे को एक फ्रेशनेस, एक एक्टिवनेस, एक एनर्जी मिलती है, वैसे ही कैफीन डालने से मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स उससे भी क्या फील होता है, एक फ्रेशनेस फील होती है. सो दे हैव एडेड कैफीन. नाउ दिस कॉजेज इंसोमनिया. इंसोमनिया मीन्स स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना, एंड हेडेक, बिकॉज इट बेसिकली इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. So basically you have seen that so many chemical substances are added to cold drinks. Now cold drinks with all these chemicals you can see are very, you can say, dangerous to consume, and still we are using it. Therefore I will request you all, stop drinking cold drinks. Instead drink pure milk, buttermilk, nimbu shikanji, गन्ना रस, आम पन्ना, all these are the traditional drinks and they are basically beneficial to our health. Adulterated milk. Once again, India, we have just discussed in the beginning also that India is the largest producer of milk and also the consumer. As the demand for milk is increasing day by day because there is increase in the population, so to meet this demand there is production of synthetic milk. बहुत सारे लोग जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए दूसरों को जहर बांट रहे हैं, दे आर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक मिल्क. सिंथेटिक मिल्क इज मेड फ्रॉम यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, poster color, hydrogen peroxide and refined oil. All these are the constituents from which this adulterated milk is, or the synthetic milk is prepared. Now in Uttar Pradesh the situation is so grim that 25% of the total population of Uttar Pradesh is basically using this synthetic milk. वहाँ पे इसका मेनेंस इतना ज़्यादा हो गया, ये इतना ज़्यादा फैल गया सिंथेटिक मिल्क कि वहाँ पे जो रहने वाले हैं उनमें से 25% लोग एडल्ट्रेटेड मिल्क को यूज़ कर रहे हैं. सो इट इज़ सच अ बिग कंसर्न नाउ. ये इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई है. नाउ व्हाट आर दी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एडल्ट्रेटेड मिल्क. जो सिंथेटिक मिल्क या एडल्ट्रेटेड मिल्क हम बोल रहे हैं उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या, क्यों हम लोग इतना कंसर्नड है. सो लॉस ऑफ विजन एंड हियरिंग. सिंथेटिक मिल्क से लॉस ऑफ विजन हो सकता है. विजन मीन्स दृष्टि, देखने की शक्ति, एंड हियरिंग, सुनने की शक्ति पे असर पड़ता है, या वो पूरी जा भी सकती है. लीवर को डैमेज कर सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं एंड द केमिकल्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर. Kidney damage, it can damage the kidney, it can cause heart problems, and as you know that milk is given to the little ones, infants. छोटे बच्चों को मिल्क दिया जाता है ज़्यादा केस में. so it is extremely poisonous for the infants and children. जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं उनको जब ये इस तरीके का पॉइजनस दूध दिया जाएगा, सिंथेटिक या एडल्ट्रेटेड मिल्क दिया जाएगा, तो उनके वाइटल ऑर्गन्स उस समय से डैमेज हो जाएंगे और ये क्या कॉज कर सकते हैं, डेथ भी कॉज कर सकते हैं बच्चों की, एंड दे कैन ऑल्सो कॉज कैंसर, राइट. सो दिस एडल्ट्रेटेड मिल्क इज़ वेरी हार्मफुल. एडल्ट्रेशन मिल्क में दो तरीके से हो सकता है. एक एडल्ट्रेशन जो माइल्ड है, जिसको हम कहते हैं, जो जनरली हर जगह होता है, उसके बगैर दूध मिलता नहीं है, वो है दूध में वाटर का एडिशन, पानी डालना. अब वो पानी डालने से दूध में क्या होता है, दूध का डाइल्यूशन हो जाता है, उसकी प्योरिटी कम हो जाती है. लेकिन ये पानी डालने से दूध में कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू रिड्यूस हो जाती है. इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, एडल्ट्रेशन. तो ये दूध हमारे हेल्थ के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़रूर कम हो जाती है. जो उसमें पोषण मिलता है, जो उसमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, अगर एक गिलास हम प्योर दूध पिए और एक गिलास अगर हम पानी वाला मिलाया हुआ पतला दूध पिए, तो दोनों में न्यूट्रिशन में डिफरेंस होगा, लेकिन उसका टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता. लेकिन जो दूसरा दूध मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक मिल्क, जो इस तरीके से ये सिंथेटिक मिल्क है, जो इन सब चीज़ों से, यूरिया, डिटर्जेंट और वेजिटेबल ऑयल, फॉर्मलिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बनता है, ये तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, जहर के जैसे होता है. स्लो पॉइजन, जो हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए बात किया था, वैसे ही ये स्लो नहीं, ये उससे थोड़ा सा फास्ट ही पॉइजन हम मान सकते हैं, राइट. सो वी आर वेरी मच कंसर्न. नाउ गवर्नमेंट इन हरियाणा, स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा ने तो यहाँ तक कानून बना दिया है कि अगर कोई एडल्ट्रेटेड मिल्क बनाते हुए पकड़ा गया या बेचते हुए पकड़ा गया तो उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, राइट. सो
इट इज़ सो सीरियस अ मैटर, ये बहुत सीरियस मैटर हो गया है. नाउ एडल्ट्रेशन इन ऑयल एंड घी, राइट. मस्टर्ड सीड्स, सरसों के जो सीड्स हैं, दे आर एडल्ट्रेटेड विथ आर्जीमोन सीड्स. आर्जीमोन के जो सीड्स होते हैं वो दिखने में सरसों के सीड्स के जैसे ही होते हैं, इसलिए जब सरसों आती है खेत से बाज़ार में तो कुछ लोग इस सरसों के जो सीड्स होते हैं उनमें आर्जीमोन के सीड्स भी ऐड कर देते हैं. फिर ये जो सरसों हैं जब इन ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जाती है, जब इनमें से तेल निकलता है तो जो आर्जीमोन ऑयल सरसों के तेल में मिक्स हो जाता है. नाउ दिस आर्जीमोन ऑयल इज़ टॉक्सिक. ये आर्जीमोन ऑयल क्या है, टॉक्सिक है. इसीलिए अगर कोई मस्टर्ड ऑयल के अंदर आर्जीमोन ऑयल का एडल्ट्रेशन किया गया है, अगर उसमें मिक्स है आर्जीमोन ऑयल, देन दिस मस्टर्ड ऑयल इज़ टॉक्सिक. उससे बहुत सारे क्या हो सकती है, बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती है, उसमें किडनी को डैमेज हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है. नाउ मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑल्सो एडल्ट्रेटेड विथ चीप palm oil. Palm oil is the most we can say cheap एडिबल ऑयल. ये इंडोनेशिया और मलेशिया से इंडिया इंपोर्ट करता है और ये अराउंड 50 to 60 रुपीज़ पर लीटर पड़ जाता है, उससे भी कम पड़ता है बहुत बार. अब दूसरे जो भी तेल हैं वो लगभग 100 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से बिकते हैं और ये पॉमोलिन है वो सिर्फ 50 रुपीज़ पर लीटर है. इसीलिए जो दूसरे एडिबल ऑयल हैं जो महंगे हैं उनमें इजीली पाम ऑयल को डाल के उनको एडल्ट्रेट किया जाता है, क्योंकि पाम ऑयल का कोई भी टेस्ट और उसकी कोई स्मेल नहीं होती है. इट इज़ टेस्टलेस एंड ऑडरलेस, इसलिए इजीली उसमें मस्टर्ड ऑयल में इसको डाल दी जाती है. या दूसरे ऑयल में भी, सनफ्लावर ऑयल, जो भी महंगे ऑयल है उनमें पाम ऑयल का एडल्ट्रेशन किया जाता है. नाउ देसी घी इज़ मिक्सड विथ वनस्पति घी. वी हैव अ कल्चर ऑफ कंज्यूमिंग देसी घी. हम मानते हैं कि देसी घी सबसे अच्छा होता है ना. देसी घी अगर कोई खाए तो उसको हार्ट डिजीज़ भी नहीं होती, वो तंदुरुस्त रहता है, उसकी आंखें ठीक रहती है, सारी चीज़ें हम मानते हैं. इसीलिए हमारे यहाँ देसी घी की बहुत ज़्यादा डिमांड है. डिमांड जब ज़्यादा होती है और सप्लाई जब कम होती है तो एडल्ट्रेशन होता है. सो सेम देसी घी इज़ मिक्स विथ वनस्पति घी, जिसको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं डालडा, जो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से बनता है, उसको मिक्स कर दिया जाता है. अब डालडा क्या होता है, 100 रुपीज़ या 80 रुपीज़ पर केजी है, जबकि जो देसी घी है, शुद्ध देसी घी, वो 500 से ज़्यादा, 600-700 रुपये पर केजी है. तो अब इजीली वनस्पति घी को क्या करते हैं, दोनों को गर्म करते हैं, देसी घी को, वनस्पति घी को, और वनस्पति घी को देसी घी में मिक्स कर देते हैं. उसमें थोड़ा एसेंस डाल देते हैं, फ्लेवर डाल देते हैं, खुशबू डाल देते हैं और उसको पैक करके उसको मार्केट में बेच देते हैं. एडल्ट्रेशन इन स्पाइसेस. स्पाइसेस मीन्स मसाले भी एडल्ट्रेशन से बचे हुए नहीं हैं. ब्रिक पाउडर इज़ मिक्सड विथ रेड चिली पाउडर. लाल मिर्च पिसी हुई, उसमें ईंट का चूरा ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि ईंट के चूरे का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है, और लाल मिर्च जब पिसी हुई रहती है पाउडर फॉर्म में तो वो भी लाल होती है. तो इस तरह से उसको मिक्स कर दिया जाता है. आर्टिफिशियल ग्रीन कलर ऑन फैनल. सौंफ जो होती है उसको और अच्छा बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को और मतलब दिखाने के लिए कि वो बहुत फ्रेश है, बहुत अच्छी है, उस पर आर्टिफिशियल ग्रीन कलर कर दिया जाता है. उसको ग्रीन कलर में डुबो के फिर सुखा दिया जाता है, जिससे वो लगती है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. लेड क्रोमेट एंड येलो सॉइल इन टर्मरिक. हल्दी के अंदर लेड क्रोमेट एक सिंथेटिक डाई है. वो कैसी होती है, वो येलो कलर की होती है, और येलो सॉइल, पीली कलर की जो मिट्टी आती है, ये सारी चीज़ें पाउडर्ड फॉर्म में टर्मरिक के अंदर, दैट मीन्स पिसी हुई हल्दी के अंदर ऐड कर दिया जाता है, इसकी मिलावट की जाती है. सल्फ़र इन चिल्ली और कोरिएंडर. सल्फ़र को फिर से चिल्ली में और कोरिएंडर में ऐड कर दिया जाता है. कोरिएंडर के अंदर सॉ डस्ट भी ऐड की जाती है. सॉ डस्ट मतलब लकड़ी का चूरा. कारपेंटर वगैरह यूज़ करते हैं, जब लकड़ी को काटते हैं तो उसमें से चूरा जो निकलता है उसमें कलर करके वो भी मसालों में मिक्स किया जाता है अलग अलग कलर में, राइट. पपैया सीड्स आर मिक्स्ड विथ ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर जो काली मिर्च है वो काफ़ी महंगी आती है. अब वो काली मिर्च महंगी आती है और उसी के जैसे दिखने वाले क्या होते हैं, पपीते के अंदर जो बीज निकलते हैं, जब उनको आप सुखा देंगे तो वो एग्जैक्टली कैसे लगते हैं, ब्लैक पेपर, काली मिर्च जैसे. तो पपैया के सीड्स को सुखा के ब्लैक पेपर के अंदर एडल्ट्रेट कर दिया जाता है, मिलावट कर दी जाती है. एडल्ट्रेशन इन पल्सेस एंड सीरियल्स. दालों के अंदर और सीरियल्स के अंदर, ग्रेन्स के अंदर किस तरह से एडल्ट्रेशन होता है. नाउ कंसारी दाल के
दो स्पेलिंग्स है, अगर हम कंसारी दाल भी बोलते हैं और बहुत बार हम क्या बोलते हैं, केसरी दाल। तो ये दोनों अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग नाम हो सकते हैं। सो दिस इज़ वन एंड दी सेम, राइट। सो कंसारी दाल और केसरी दाल आर वन एंड दी सेम। इज़ मिक्सड विथ आइदर दी ग्राम, दैट मीन्स चना दाल के साथ या तूर या अरहर की दाल के अंदर इसकी मिलावट की जाती है। नाउ दिस केसरी और कंसारी दाल इज़ टॉक्सिक। वंस अगेन, जैसे आर्जीमोन टॉक्सिक था वैसे ही ये कंसारी दाल भी टॉक्सिक होती है। इससे बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती है, इससे बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। इसको क्योंकि ये एकदम कैसे लगती है, चने के दाल या अरहर की दाल के जैसे इसके दाने होते हैं, इसीलिए इसको कंसारी या केसरी दाल को अरहर, तूर दाल या चने की दाल के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। क्योंकि चने की दाल और अरहर की दाल, अभी अरहर की दाल जैसे आपको मालूम है 100 रुपये से भी महंगी है पर केजी, और कई बार 200 रुपये तक पहुंच जाती है। तो उसके अंदर इसका एडल्ट्रेशन कर दिया जाता है, मिलावट कर दी जाती है। उससे क्या होती है, अरहर की दाल की क्वांटिटी बढ़ जाती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। सिमिलरली मेज़ फ्लोर, मक्के का आटा, इज़ मिक्स विथ ग्राम फ्लोर और बेसन। बेसन और ग्राम फ्लोर इज़ एक्सपेंसिव, वो जो है 80-90 रुपये किलो मिलता है, जबकि जो मेज़ फ्लोर है वो 40 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। और दोनों के कलर में डिफरेंस नहीं है, ये भी येलो कलर का होता है, स्लाइट येलो क्रीमिश कलर का, और बेसन भी का कलर भी सेम होता है। इसलिए मक्के का आटा बेसन में मिक्स कर दिया जाता है। हियर यू कैन सी, राइट। पल्सेस एंड राइस आर आर्टिफिशियली पॉलिश्ड। Now pulses which are of inferior quality or which are not good for human consumption are polished। उसको स्पेशली क्या किया जाता है, उसमें ऑयल लगा के, उसमें डाइज कलर लगा के और उनको पॉलिश कर दिया जाता है और इतनी चमकदार बना दी जाती है जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी की दाल है। या इसी तरीके से राइस पे भी पॉलिश करके उसको एकदम वाइट बना दिया जाता है, चमकदार बना दिया जाता है। और जब आप उसको देखेंगे आपको लगेगा इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जबकि उसके ऊपर सिंथेटिक डाइज और ऑयल लगा के उसके ऊपर ये कलर कर दिया जाता है। बट दीज डाइज कलर्स आर ऑल्सो, दे आर डेंजरस। ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द पल्सेस इज़ नॉट गुड, राइट। नाउ आपने सुना भी होगा दैट राइस हैज़ गॉन वन स्टेप फर्दर। नाउ देर आर राइस विच आर आर्टिफिशियल, प्लास्टिक के चावल आने लग गए हैं। चाइना से इस तरीके की हमारे को खबरें आई थी और ये देखा भी गया है कि बहुत जगह राइस के अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे इस तरीके के एडिटिव्स मिला दिए जाते हैं जो कैसे लगते हैं, प्लास्टिक के जैसे लगते हैं, और वो राइस के एग्जैक्टली शेप के होते हैं। नाउ आर्टिफिशियल कलर्स आर यूज्ड इन स्वीट्स विच कैन कॉज कैंसर। सो देर आर वेरी, जो वेजिटेबल कलर्स बहुत कम आते हैं और वो बहुत महंगे होते हैं। इसलिए जब भी मिठाइयाँ बनाते हैं, व्हेन स्वीट्स आर मेड, उनको अलग अलग वाइब्रेंट कलर देने के लिए उनमें आर्टिफिशियल कलर, सिंथेटिक डाइज मिक्स की जाती हैं। एंड दीज डाइज आर कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस मीन्स एजेंट्स विच कैन कॉज, और द केमिकल्स विच हैव पोटेंशियल टू कॉज कैंसर, राइट। सो these sweets are also dangerous to consume, they are toxic to consume। Similarly आपने देखा होगा फेस्टिव सीजन के अंदर, when during होली, दीपावली, all these festive seasons the demand for sweet increases many folds। मिठाइयों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस समय एडल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है। आप सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेशन किस में होता है, मावा या खोया के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर मिठाइयाँ इसी से बनती है। सिंथेटिक खोया या मावा आने लगता है जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं और जिसकी वजह से ये जो मिठाइयाँ बनती हैं उनसे वो सारी टॉक्सिक है हमारे लिए। नाउ एडल्ट्रेशन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, जो फ्रूट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो एडल्ट्रेटेड, दे आर ऑल्सो एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट, मतलब उनको जो राइप करने के लिए, उनको उगाने के लिए या उनकी क्वालिटी में चेंज कर दिया गया है यूजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस। केमिकल इंजेक्शंस आर यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग ब्राइट कलर्स टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हियर यू कैन सी there are many chemical substances which are now used to make fruits very vibrant। अब अगर हम मान लेते हैं एक एप्पल है जिसका कलर फेड हुआ हुआ है, जो ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर उसमें एक केमिकल का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उससे वो ब्राइट रेड कलर का हो जाता है तो हमको लगेगा अरे ये फ्रेश है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सिमिलरली देर आर मैनी केमिकल्स विच आर यूज्ड। बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उनको यूज़ करके हम आर्टिफिशियली इन फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर
वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट. सो ब्रिंगिंग ब्राइट कलर्स टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. लेड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस आर स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस, राइट. तो लेट मी जस्ट गिव यू दैट पिक्चर ऑल्सो. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, ये मटर जो है, इन मटर को एक ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में, जो क्या हो सकता है फेरस सल्फेट या कॉपर सल्फेट या लेड का कोई सॉल्यूशन हो सकता है कंपाउंड का, उसमें डुबो देते हैं, कुछ देर रखते हैं और फिर निकालते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं, मटर एकदम ग्रीन दिखते हैं. ग्रीन दिखने के कारण हमको लगता है ये फ्रेश है, जबकि मटर की आप क्वालिटी देख सकते हो ये इतने फ्रेश नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लौकी है. लौकी के अंदर ये पर्सन क्या कर रहा है, एक इंजेक्शन लगा रहा है. नाउ दिस इंजेक्शन इज ऑफ अ प्लांट हार्मोन. कुछ प्लांट केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्लांट हार्मोन्स. ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, बहुत सारे एसिटिलीन है, एब्सिसिक एसिड है. प्लांट हार्मोन्स, इनमें से कुछ प्लांट हार्मोन्स दे आर यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं. अब जब ये प्लांट हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं तो रातों रात ये लौकी जिसकी साइज़ छोटी थी, ये 1 दिन या 2 दिन के अंदर इसकी साइज़ 2 से 3 गुना बढ़ जाती है. और उसके बाद ये मार्केट में उसको बेचते हैं जिससे इसका ज़्यादा दाम मिलता है. लेकिन ये क्यों हार्मफुल है, क्योंकि हमने आर्टिफिशियली प्लांट केमिकल का इंजेक्शन दिया है. क्योंकि आर्टिफिशियली जब भी हम देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. सिमिलरली हियर यू कैन सी दिस पर्सन वंस अगेन इज़ डूइंग द सेम थिंग. नीचे उसने पानी रखा है जिसके अंदर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस उसने रखा है, घोला हुआ है. वो क्या हो सकता है, लेड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, इस तरीके की कोई या ग्रीन डाई हो सकती है. उसमें इसने ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको डिप किया, थोड़ी देर रखा और उसके बाद निकाला. तो जिससे ये क्या दिखती हैं, एकदम ग्रीन फ्रेश दिखती हैं, और जिसकी वजह से इनके प्राइजेज़ ये ज़्यादा करके बेचते हैं, जबकि ये फ्रेश नहीं है. सिमिलरली हियर यू कैन सी द पर्सन इज स्प्रेइंग अ केमिकल ऑन द वेजिटेबल्स. ये पर्सन क्या कर रहा है, वेजिटेबल के ऊपर एक स्प्रे डाल रहा है. इस स्प्रे से वो क्या दिखते हैं, एकदम ब्राइट दिखने लगते, चमकदार दिखने लगते हैं. एंड वी एज्यूम that these are fresh. Similarly this person is also doing the same thing, that is in a green colored liquid. It is that person, he or she is dipping the vegetable so that they can catch that green color and look more fresh than they are. Now the concern is increasing in adulteration because when we get sick, even the medicines which we are consuming, almost around 30% of the medicines which we are consuming are fake medicine. Fake medicines are also known as counterfeit medicines, है ना, नकली दवाएं होती है. तो once again this is a grim serious concern. Adulteration in medicine has become a major concern. तो अगर हमने एडल्ट्रेटेड फ्रूट्स खाए, हमने अगर एडल्ट्रेटेड मिठाइयाँ खाई, हमने दूध पिया और उसके बाद हम बीमार हो गए. जब हम बीमार हो गए तो हमको लगता है कि जब हम मेडिसिन्स लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. लेकिन अगर मेडिसिन्स भी एडल्ट्रेटेड है, मेडिसिन्स फेक हैं, नकली हैं, काउंटरफेट हैं, तो उसके बाद हमारे ठीक होने का कोई भी रास्ता नहीं रहता. सो एडल्ट्रेशन इज मेडिसिन वंस अगेन इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न. एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है. नाउ to address this growing concern, government had constituted a committee, and that committee is known as Maaslaker committee. And this committee gave its recommendation in 2003. इन्होंने 2003 के अंदर अपनी recommendation दी on the issue of counterfeit, नकली दवाओं के ऊपर. And this committee recommended death penalty for people who are involved. नाशेलकर कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, दैट दोज पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग दीज फेक मेडिसिन्स, दीज काउंटरफेट मेडिसिन्स, नकली दवाओं को जो बनाने का धंधा करते हैं और जो उनको बेचने का धंधा करते हैं, जो भी इस ट्रेड में इन्वॉल्व है उसको क्या दिया जा सकता है, डेथ पेनल्टी, उसको मृत्यु दंड का प्रावधान होना चाहिए. सो this was basically the recommendation of this committee which was set up with the recommendation was given by this committee in 2003. Now what are the laws in India
टू प्रिवेंट फूड अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन मिलावट ना हो, कम से कम हो, हम उसको कैसे रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके लिए कौन से कानून हैं। तो एक सबसे बड़ा जो कानून भारत में, अब तो दूसरे भी कानून अब बन गए हैं रिसेंटली, लेकिन जो सबसे पुराना और जो मेजर, जो मेन कानून अभी तक है, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954। द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 इज़ द मेन लॉ अगेंस्ट फूड अडल्ट्रेशन। मिलावट के अगेंस्ट ये एक लॉ बनाया गया था 1954 में, वो अभी भी मेन लॉ है, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं लेकिन अभी भी वो मेन लॉ है। इन दिस सेक्शन 65 ऑफ दिस law, this, that is the section 65 of this act, there are guidelines about the use of pesticides and insecticides and also the adulteration of food with insecticides। उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस दी हुई है कि कौन से इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में, वेजिटेबल ग्रोथ के अंदर यूज़ की जा सकती है, और जब ये फूड स्टफ़ मार्केट में आता है कंजम्पशन के लिए, तो इनके अंदर जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनका जो कॉन्सनट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कॉन्सनट्रेशन कितना होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का कॉन्सनट्रेशन होगा देन दैट विल बी टॉक्सिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वो जो टॉक्सिसिटी है उसका लेवल बढ़ जाएगा वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, पल्सेस के अंदर, फूड स्टफ़ के अंदर, और उसके कारण जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो इन फूड स्टफ़ को कंज्यूम करेगी उनको भी टॉक्सिक इफेक्ट। Now the big question which arises, how this growing menace means एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, of adulteration can be stopped, how this growing menace of adulteration can be stopped, this is a big question. Now first, to find its solution we have to go to the reasons. What are the reasons? There are absence of necessary standard prescribed by government. See, in the recent time there are new food processing industries which have come up, like the cold drink industry, like the pizza shop, like the bakeries, and many other food processing industry, fruit juice industry, jam, juices, ketchups. So all these basically are new, and there are no clear cut instructions which constituent should be added in, what should be the maximum limit, if they are toxic or not, if they should be banned or not. So there are many chemicals which are added during the process of processing these foodstuffs, either as preservatives, either as flavoring agents, either as color enhancing agents, either as basically flavoring agents. So there are essence, preservatives. So these chemicals basically are somehow toxic in larger concentration, in higher concentration, but they are safe at a particular concentration. So the limit should be given, a clear cut guideline should be issued by government, and then it should be monitored strictly, right? And the second and one of the most important is corruption. See, government has a department, the food department, which basically monitors. There are food inspectors which go to each shop, food processing industry, and they take samples are analyzed in the labs. If their samples are not up to the level, if they are adulterated, then case is filed, penalties given to the that particular shopkeeper or the industry. But what happens when they go to that particular shop or industry or for food processing unit, these units or these persons who are involved in the adulting in that malpractices, they offer money, gift, like, right? So they make them corrupt. Now they either do not take samples, or they take samples and they give a clean sheet that the sample was found satisfactory. Okay, then there are slow legal processes. Somehow if a person or the industry is caught adulterating, if a case is also filed, then the case runs for years and the judgment does not come. So there are loopholes in the legal processes also, and many times even if the convict is really doing a crime, then also he or she is released, right? So the legal process has also to be strengthened. Then many times there is money power which is above all the powers, and political nexus. So the big amount of money which is involved and the political links also pressurize the government officials to keep off these particular persons who are involved in such frauds or such malpractices. So these are the major reasons. Now then, how this adulteration can be stopped? Now still there is hope.
Adulteration can be stopped. First, the government has to make a solid policy. A solid policy framework should be there. Then the proper and strict implementation has to be ensured. No corruption, zero tolerance, such type of policies have to be formed and implemented. Then there should be separate codes for these cases, like for environmental policy. Then now there is NGT, National Green Tribunal. Similarly, for these cases of adulteration, there should be separate codes and there should be a time frame, like these cases should be basically completed, the judgment should come within 1 year at the most. Then only this practice of adulteration can be minimized or stopped. So we have to fight against corruption as a whole. The laymen have to unify, the common man have to be made more aware by the media, by the government, and they themselves should be more aware about this growing menace of adulteration. They should report this adulteration to first the shopkeeper and then to the concerned department and monitor what is the progress on their complaint. Thank you very much.